نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات مل کر ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک دفعہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب تم لوگوں کو دیکھو دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت کچھ گفتگو کروں گا۔ آپ سماعت فرمائیں کہ یہ ماہ رجب المرجب ہے اور اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں کل 4 مہینوں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ان میں سے ایک مہینہ یہ ماہ رجب المرجب ہے، اور ماہ رجب المرجب کی فضیلت احادیث کریمہ میں بھی کافی موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کی فضیلت دوسرے مہینوں میں اسی طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت دوسری آسمانی کتابوں میں ہے، یعنی جس طرح دوسری تمام آسمانی کتابوں میں افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے، اسی طرح دیگر مہینوں پر فضیلت ماہ رجب المرجب کو ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب یہ رب تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ رجب المرجب بنفس نفیس بذات خود اپنے آپ میں بہت زیادہ فضائل اور بہت زیادہ کمالات و حسنات رکھتے ہیں، اور یہ خود فضائل کے جامع ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ رجب المرجب میں اللہ کے بے پناہ برگزیدہ بندوں کے عرس اسی مہینے میں آتے ہیں۔ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس اسی ماہ رجب میں ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس اسی مہینے میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس اسی مہینے میں ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس جیسا کہ کل گزرا اسی مہینے میں ہے، اور حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس اسی مہینے میں ہے، اور اسی طریقے سے بہت سی بڑی شخصیتوں کی ولادت اس مہینے میں ہے،
اور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے مرشد گرامی حضرت ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا سید مدنی میاں مدہ ذلہ العالی اللہ آپ کی عمر کو دراز فرمائے، آپ کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے بہت سی سعادتیں اس مہینے میں اکٹھا ہو چکی ہے، جمع ہو گئی ہے۔ مسلمانوں، اس ماہ رجب المرجب میں خوب عبادات کرنے کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا مہینہ ہے، اور رب کے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چل کر اپنے آپ کو نکھارنے کا مہینہ ہے۔ اب ان میں مشہور و معروف شخصیات میں ایک شخصیت جسے آپ خواجہ وقت کہتے ہیں، عطائے رسول کہتے ہیں، ابن الرسول کہتے ہیں، سلطان الہند کہتے ہیں، شہنشاہ ہندوستان کہتے ہیں، بادشاہ ہند کہتے ہیں، اور اس ملک میں 90 لاکھ سے زیادہ تعداد میں غیر مسلموں کو دامن اسلام میں لانے والے اس دائی اور مبلغ کا نام جو ہے خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی سیرت اور سوانح پر، آپ کے کمالات اور کرامات پر آپ نے گفتگو بڑی لمبی سماعت کر رکھی ہے، بڑی بسیط گفتگو ہو چکی ہے، لیکن علماء، مفکرین، مدبرین اور اہل فکر اور اہل دانش یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہم جس راہ کی طرف اور جس ڈگر کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری نسلیں جس ڈگر کی طرف جا کر تباہ ہو رہی ہے، تو اس حالات کے پیش نظر میں ہمارے لیے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اولیاء کاملین اور اللہ کے برگزیدہ و محبوب بندوں کے کرامات کو بیان کرنے سے زیادہ ان کی تعلیمات کو بیان کرے، ان کی سیرت کو بیان کرے، ان کے اخلاق کو بیان کرے، ان کی طرز زندگی کو بیان کرے، ان کی صبح شام کو بیان کرے، تاکہ ہماری نوجوان نسلوں میں ہمارے درمیان جو ہے ایک نئی امن پیدا ہو، ایک نیا انقلاب پیدا ہو، اور ہم گمراہی سے صراط مستقیم کی طرف آ سکیں۔ ذرا آئیے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں آپ نے بے پناہ سنا ہے۔ ایک 15 سال کی عمر کا نونہال اور نوخیز نوجوان جس کی جوانی ابھی آ رہی ہے، باپ کے انتقال کے بعد وراثت میں آپ نے سنا، مختصر سب آپ کو یاد آ رہا ہوگا، میں صرف قریب کر رہا ہوں، جو ہے 15 سال کی عمر میں تقریباً ایک باغ اور پنچکی ملی۔ شروع میں وراثت باپ کی دیکھ بھال اور جو ہے اس کی نشو و نما میں لگ جاتے ہیں، پھر جو ہے اللہ نے ان کی قسمت میں انقلاب پیدا کیا تو اپنے ایک محبوب و برگزیدہ بندے سے ان کی ملاقات کروا دی، جسے حضرت ابراہیم تندوزی کہتے ہیں۔ ان کی نگاہ ان پر پڑی، نگاہ کیا پڑی کہ نگاہ اٹک گئی، اور اللہ والے کی نگاہ اگر کسی چور کے اوپر پڑ جائے تو آپ نے سنا ہے کہ آنے واحد میں قسمتیں بدلتی ہیں، لمحے پہلے لمحے ما قبل میں چور ہوتا ہے، اور ایک ہی لمحے کے بعد ابدال نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ولی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اس نوجوان کی بھی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا، وہ اپنا کس کھردہ کھلایا اللہ والے نے، جسے ہم جھوٹا کہتے ہیں، اپنا جھوٹا لقمہ کھلایا، تاثیر کچھ ایسی پیدا ہوئی جو دنیا کے باغ کی سینچائی کر رہے تھے، اب دنیا سے بے رغبتی ہوئی، دین کی چاہت پیدا ہوئی، رسول اللہ کے سنتوں کی چاہت پیدا ہوئی، اب دنیا کے باغ کی سینچائی کرنے کے بجائے اب باغ مصطفیٰ اور دین
दीन के खिदमत के लिए कदम उठे और रवाना हो गए। जब इसी तलाश में निकले तो कुछ ही दूर चले थे, एक करिया और गांव में फिर एक अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, जिसे दुनिया हारून उस्मानी के नाम से जानती है। जो है गांव हारून में मुलाकात हुई, हजरत हारून उस्मानी से बैत हो गए, मुरीद हो गए। हमारी जुबान में मुरीद हो गए। मुरीद क्या हुए, बैत क्या हुए? उनके हाथ में बिकना था, उनके हाथ में बिकना था कि उस्मान हारूनी ने मोइनुद्दीन को खरीद कर दुनिया का अनमोल बना दिया। सुभान अल्लाह, खरीद कर दुनिया का अनमोल बनाया। इधर उस्मान हारूनी ने मोइनुद्दीन को खरीदा, इन्हें निखारा, इन्हें चमकाया, इसको एक जो है खाक से इन्हें सोना बनाया, पत्थर से इन्हें हीरा और जौहर बनाया। वो जौहर एक दिन में बन जाता है? नहीं मुसलमानों, अब तारीख के औरात पलटिए तो मुअर्रिखीन लिखते हैं हजरत मोइनुद्दीन उस्मान हारूनी के दामन से वाबस्ता हुए तो एक दिन नहीं, एक हफ्ता और महीना नहीं, एक साल 2 साल नहीं, मुसलसल 22 साल जो है हजरत उस्मान हारूनी की खिदमत में रहकर अपने मुर्शिद की जानो दिल से खिदमतें करते रहे। सुभान अल्लाह, 22 साल तक हजरत मोइनुद्दीन उस्मान हारूनी की बारगाह में निखरते रहे। जनाब उस्मान हारूनी उसको निखारते रहे और निखारते निखारते जब कोहे नूर बना दिया, अब दुनिया का आफताब और महताब की तरह चमकदार बना दिया, तो उस कोहे नूर को उठाया और उस उस्मान हारूनी ने अपने दामन में समेटा और अब रवाना हो गए सूए मक्का व मदीना। अब हज के लिए जाते हैं, अब पीर भी साथ में है, मुरीद भी साथ में है। अल्लाह अकबर, पीर इस बात पर मचल रहा है कि मैंने जिस मोती को निखार कर कोहे नूर बनाया है वो दुनिया का चमकता हुआ कोहे नूर बन चुका है। मुरीद इसीलिए झूम रहा है कि अपने पीर के दामन में छुपकर जो है अपने नबी की बारगाह की तरफ जा रहा हो। हज के अरकान पूरे हो गए, हजरत उस्मान ने हजरत मोइनुद्दीन को लेकर बारगाह मुस्तफा में आए। सरकार की बारगाह में जब सलामी पेश करने के लिए हाजिर आए तो दोनों पीर और दोनों जो है पीरों मुरीद ने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक दफा आप भी कह ले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो दरबार मुस्तफा से आवाज आती है, जवाब आता है वालेकुमुस्सलाम या सुल्तान अल हिंद। कहिए सुभान अल्लाह, ए हिंदुस्तान के सुल्तान तुम्हें सलाम हो। यानी मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने उसी दिन आपको हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। अब तारीख बड़ी लंबी चौड़ी है, आपने सुन रखा है। अलगरज मुस्तफा ने दूसरे हज के मौके से मुअर्रिखीन की नजर के मुताबिक जो है ख्वाब में आपको हिंदुस्तान का नक्शा बता दिया गया, दिखा दिया और दिखाने के बाद कहा कि बेटा जाओ मेरे लाए हुए दीन की हिफाजत और उसकी तबलीग व इशाअत के लिए उस सरजमीन पर पहुंच जहां बुतकदा ही बुतकदा है, जहां बुत ही बुत है, जहां वहदानियत का इनकार ही इनकार हो रहा है, जहां हमारा कोई नाम लेवा नजर नहीं आ रहा है। अलगरज जो है, अलगरज शहर शहर, करिया करिया, डगर डगर, सारी दुनिया को जो है सैर करते हुए और राहों में बरगुज़ीदा बंदों की मुलाकातें करते हुए, दुआएं लेते हुए आप अपनी मंजिल सरजमीने हिंदुस्तान में आपका वरूद मसूद हो जाता है। उस सरजमीने हिंद में वो जमीन जिसकी किस्मत जगानी थी, राजस्थान का लगभग सेहरा, चटियल मैदान, पहाड़ ही पहाड़, आपको ज्ञान नजर नहीं आ रहे, सदाएं अजान की बुलंद है, अजानों की सदाएं नजर नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रही है। वहां एक लगभग सेहरा ऊंचे चटियल पहाड़ के दामन में आकर आपने अपना मुसल्ला बिछा दिया। साथ में कुछ औलिया मुरीदीन की शक्ल में साथ में थे। अलगरज आपने यहां आकर अपना मुसल्ला क्या बिछाया, अपना मुसल्ला क्या बिछाया कि बस मुसल्ला बिछाया तो लोग आते गए, कारवां बनता गया और आपके दस्ते हक परस्त पर लोग कलमे तौहीद पढ़ते गए और तादाद 90 लाख से बढ़ती गई। सुभान अल्लाह, जहां अजानें नहीं हो रही थी, जहां खुदा की वहदानियत के राज नहीं अलाते जा रहे थे, जहां मुस्तफा का लाया हुआ कलमा नहीं पढ़ा जा रहा था, जहां चेहरों पर सुन्नते मुस्तफा नजर नहीं आ रहे थे, वहां पर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने अखलाक से, अपने आदाब
अदब से, अपनी तालीमात से, अपनी तबलीग से, अपनी तर्ज जिंदगी से, अपने हुस्न मुआशरत से और अपनी जो है हुस्न अखलाक जो है अच्छे अखलाक व किरदार से, अपने किरदार की नूर और अपने किरदार की जो है शुआएं और किरणें उस सरजमीन पर कुछ इस तरह आपने बिखेरा कि आज देखिए सारा हिंदुस्तान ही नहीं, बर्रे सगीर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हजरत मुइनुल मिल्ला व दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के आशिकों की जम्मे गफीर नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, जम्मे गफीर नजर आ रही है। अच्छा, मैं आपको कहना यह चाहूंगा, आज हमारी तर्ज जिंदगी क्या है? आज हमारी तर्ज जिंदगी है हम दोस्तों को खुश करने के लिए गुनाह में मुब्तला है, रिश्तेदारों को निभाने के लिए गुनाह में मुब्तला है, बच्चों की परवरिश और तालीम के लिए, ऊंची बिल्डिंगों के लिए, बेहतरीन नौकरी के लिए, दिगर ममालिक में अच्छे कारोबार के लिए हम न हलाल देखते हैं, न हराम देखते हैं, न सच देखते हैं, न झूठ देखते हैं, न इस्लाम की तालीमात को निगाहों के सामने रखते हैं। बस हमारे अंदर आज एक हूर चली हुई है और वो हूर ये है कि हमारी जेबों में पैसे हो, हमारे पास बंगले हो, हमारे पास गाड़ियां हो, हम मखलूक को खुश करने के लिए खालिक की जो है रजा की कोई परवाह नहीं करते, रब नाराज हो गए इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन जनाबे मोइनुल मिल्ला वो दीन को तो देखिए, तारीख पढ़िए तो सही। जब आप अजमेर की धरती पर आए तो वहां लोग गद्दे बिछाकर, कालीने बिछाकर, एसी लगाकर आपका इस्तकबाल करने वाले लोग नहीं थे। कोई आस्तीनों में जहर में बुझाया हुआ छुरा लेकर आ रहा है कि इनकी गर्दन काट दी जाए, कोई जादू का जोर लेकर आ रहा है इन्हें मिस्मार कर दिया जाए, कोई जो है लश्करों का बोझ लेकर आ रहा है कि इनके परख के उड़ा दिए जाए। लेकिन सलाम ख्वाजा, सलाम दीनुल मुइन वल मिल्ला, आपकी इस्तिकामत को, आपकी हिकमत को, आपकी हिम्मत को, आपकी शुजाअत को, आपके अखलाक व किरदार को। अल्लाह अकबर, आपने सब्र से काम लिया। जब सब्र से काम लिया, जब राहों से आ रहे थे, सुना आपने शहजादा, अपने जमाने का शहजादे वक्त हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने जमाने के शहजादा थे, उनको मुरीद किया और इनकी निगाह तासीर उन पर पड़े और आपने ऐसी तरबियत की कि आपको दिल्ली का कुतुब ही बना डाला। सुभान अल्लाह, दिल्ली का कुतुब ही बना डाला। हाँ, जो पीर होते हैं, जो शेख होते हैं, वो अपने मुरीदों से बेखबर नहीं होते हैं, उनसे बेखबर नहीं होते। इनका ताल्लुक रब से भी होता है और इनका ताल्लुक अपने नीचे अपने मुरीदीन से भी होता है। सुभान अल्लाह, अगर इनकी नैया डूब रही है, इनकी कश्ती डूबती है, तो बहरे जुल्मात और बहरे मसाइबो जुल्मत में डूबने वाली कश्ती का किनारा इधर से पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं और इधर दामने मुस्तफा से फैज लेकर रब की नुसरत व इआनत भी ले रहे होते हैं और इधर से मदद ली, इधर से दूसरों की मदद कर दी। सुभान अल्लाह, इधर से मदद ली, इधर से दूसरों की मदद कर दी। वक्त कम है, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, एक बार दुरूद सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान है। एक महफिल सजी है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की। महफिल क्या सजी है? मुरीदीन की भीड़ है। हमारे आपके जैसे मुरीदीन नहीं, आपके मुरीदीन भी तो अल्लाह अकबर औलिया कामिलीन की जमात है। उन्हीं औलिया में एक आपके बड़े चहीते और खास मुरीद हजरत शेख अली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बड़े प्यारे मुरीद थे। शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, सुनिए, आपको जो है बड़ा मजा आएगा। हजरत शेख अली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके खलीफा भी थे, मुरीद भी थे, लेकिन बड़े गरीब थे। उन दिनों बड़े तंग दस्त थे, बड़े मोहताज थे। एक बड़े ताजिर से उन्होंने जो है बड़े ताजिर से उन्होंने कर्जा लिया हुआ था। एक जमाना गुजर गया, कर्जा वापस न कर सके। एक दिन आपकी महफिल सजी हुई है, वो बड़ा ताजिर जिसने कर्जा दिया था वो महफिल में आया और दंदनाते हुए आते हुए हजरत ख्वाजा शेख अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के गरेबान को पकड़ा और गरेबान को पकड़कर खींचकर खड़ा किया और कहा, तो मेरा कर्जा लौटा।
आपने बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ी नदामत हुई। आपके पीर भाई मौजूद थे, आपके पीरो मुर्शिद मौजूद थे, मजनू ने गिरेबान पकड़ लिया, थे गरीब, बड़े जो है दिल आजारी हुई। आपने फरमाया तंग दस्त हूं, अभी थोड़ा हाथ जो है बड़ा ही कमजोर है, कुछ दिनों में आपका कर्जा वापस कर दूंगा। कहा नहीं, कर्जे दो मैं तो बाजारों में घिसेड़ूंगा, कर्जा मेरा वापस करो मैं तो बाजारों में घिसेड़ूंगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन उठे, उसके पास गए, जाकर कहा अभी ये तंग दस्त है, थोड़ा मुश्किल में है, इन्हें मोहलत दे दो, तुम्हारा कर्जा लौटा दिया जाएगा। उसने हजरत ख्वाजा से भी बदतमीजी की। लोगों को दौलत का नशा चढ़ जाता है ना, नशे में आकर उन्हें उनकी भी तौहीन कर दी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपने जेब से चंद सिक्के निकाले, रुमाल बिछाया तो कुतुबुद्दीन रुमाल बिछाया, जेब से चंद सिक्के निकाले, रुमाल में डाला, और रुमाल में वो सिक्के डालना ही था, रब की रहमत और नुसरत में पूरा का पूरा रुमाल सिक्कों से भर गया। सुभान अल्लाह, दौलत से भर गया। क्या तुम्हारा जितना बनता है उतना ले लो। अब उसने अपने कर्जे के पैसे लेने लगे, 2 मिनट माफ करना लेट हो रहा है, लेकिन क्या करे, उसने जो है सिक्के समेटना शुरू किया। अब लालची था, दुनिया का बहुत शख्स इंसान था, हरीस था, देखा ख्वाजा साहब नहीं देख रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही अपने दामन में समेट लिया। लेकिन ख्वाजा तो देख रहे थे, समेटा चला गया। कुछ दिन गुजरा, कारोबार उसका तबाह हुआ, और वो हाथ जिससे उसने हजरत शेख अली का गरेबान पकड़ा था ना, वो शल हो गया, सूख गया, हमारी जुबान में कहने लकवा हो गया, अब हिलता डुलता नहीं, सूख गया। कुछ दिन बाद रोता हुआ फिर हजरत ख्वाजा की बारगाह में आया, कहा ख्वाजा गलती हो गई, मुझे माफी मिलेगी? कहा पहलियां ना बुझाओ, साफ सुथरा बोलो, हुआ क्या है? का हुआ यह है कि उस दिन सिक्के लेने में मैंने खयानत से काम लिया, जितना मेरा बनता था मैंने उससे थोड़ा ज्यादा ले लिया, इसीलिए हमको लगता है कि उस ज्यादा माल ले लेने की वजह से मुझ पर अल्लाह की कहर नाजिल हो गया और मेरा हाथ सूख गया। हजरत ख्वाजा ने फरमाया नहीं, जब तुम सिक्के ले रहे थे तो मैं देख रहा था, मेरे सिक्के लेने की वजह से नहीं, वो सिक्के तो अल्लाह की तरफ से दिए हुए थे और रब की दौलत तो रब का बंदा ही ले रहा था। तो भला मैं क्या कहूं, तेरा हाथ जो सूखा है इसलिए सूखा है कि भरे मजमे में तुमने अल्लाह के एक फकीर बंदे को, अल्लाह के एक आलिम बंदे को, अल्लाह के एक बरगजीदा बंदे को, अल्लाह के एक महबूब बंदे को रुसवा कर दिया, शर्मिंदा और जलील खार कर दिया, लोगों के सामने उसके गिरेबान पकड़ लिए। यकीनन उनके आंखों से जो आंसू के कतरे तन्हाई में जमीन पर गिरे, वही आंखों के आंसू के उनके कतरे रब की बारगाह में मुस्तजाब हुए और आज तुम्हारी हाथों में पकड़ने की ताकत बाकी न रही। मालूम यह हुआ कि अगर तुम्हें अपने हाथ में ताकत चाहिए तो वो शेख अली मौजूद है, उनसे माफी मांगो। उठा, उनके कदमों में गिरा, शेख अली ने उन्हें उठाया, कहा मैंने तुझे माफ किया। उधर से माफी का जुमला अदा होना था, इधर इनके हाथों में हरकत हुई और हाथ इनका तंदुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। मालूम क्या हुआ मुसलमानों, अल्लाह वालों को, उलमा को, सादात को, मशाइख को, अपने से बड़े इज्जतदारों को हो सकता है दुनिया की तंगी हो जाए, गरीबी हो जाए, मोहताजी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रब ने आपको ताकत दिया, रब ने हमें दौलत दी, रब ने हमें शोहरत दी, रब ने हमें ओहदा दिया तो हम कहीं भी किसी को भी रुसवा कर जाए, किसी को नादिमो शर्मिंदा कर दे। ये मुसलमानों का और गुलामान मुस्तफा का सेवा नहीं होता। गुलामान मुस्तफा का सेवा ये होता है कि देखो ख्वाजा की बारगाह में छुरा लेकर आस्तीन में छुपा कर आता, मौका मिला तो मोइनुद्दीन का काम तमाम होगा। मिलते मिलाते मुसाफा के लिए जब हजरत ख्वाजा की बारगाह में बैठा तो ख्वाजा मुस्कुराते फरमाते हैं बैठा क्यों है, जिस काम के लिए आए हो छुरा निकालो, काम तमाम क्यों नहीं करते हो? सुभान अल्लाह। शर्मिंदा हुआ, कदमों में गिरा और पर उठा ला इलाहा, पढ़िए पर उठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला, सभी पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पढ़ा और दामने इस्लाम में जगह ले लिया। कल तक के नारी था और आज जन्नत का मुजदा ले लिया, जन्नत का टिकट पा गया। ये अल्लाह वालों की सीरत होती है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में वफा की
اور آگے وقت ملا آپ کو بھی ہمیں بھی جلد آنے کی کوشش فرمائے، اس پر میں گفتگو اور بھی کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔